Okay, anyone would like to start Cholas? Imperial Cholas. Yes. Cholas, Imperial Cholas. Cholas पहले वाले we have discussed ना इलाहा का निकाल वाले. We have to discuss Rajgaj वाला portion. Continue, Sparsh. Okay, then let me start. Okay, so Cholas dynasty we are starting with. Who was the founder of Cholas? Vijayalaya. Okay, so Vijayalaya was the founder of the Cholas, and in which century they came? Mid-9th century. Around 850. Yes. Okay. So 850 to 871, they were existing and they were concentrated in and around the region of the Tamil Nadu, Tanjore present, and they were the they had given the patronage to many kings. Okay, and Pallavas were the feudatories of the Cholas. Okay, so someone was asking. So Palvas were the feudatories of the Cholas. Okay, just remember this point. Then comes the Aditya one. So Aditya one was like the ruler of this dynasty only. So he took that title of Kodandram. Not important. Okay. Then comes the Uttar Merur inscription. What was it? Uttar Merur inscription. So Uttar Merur inscription gives the knowledge regarding the local self-government of that time, and it is associated with the Prantaka one. So he composed the Uttar Merur inscription. Then, for the first time, the gold coins, like in the south, the gold coins were started by the Uttam Chol in the Chola dynasty. And then all the same common kings comes. Okay, Rajgaj, then Rajendra. Okay, so something about Rajgaj. हाँ, वो राजा राजा चोला उसने वो बनवाया था ना टेम्पल, ये राजा बृहदेश्वर टेम्पल. Yes, okay, so Brihadeshwar temple was constructed by him, also called as the Lord Shiva temple. एंड राजगज टेम्पल भी बोला जाता है उसे. सो वो जो टेम्पल है, प्लस जो राजगज थे उन्होंने श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट था उसको कंक्वायर किया था. एंड हु कंक्वायर्ड द एंटायर सिलोन? राजेंद्र किया था हमने, भूल गया मैं, एक सेकंड. Yes, Rajendra first took the entire Ceylon. Ceylon is the old name of the Sri Lanka. राजगज ऑल्सो कंक्वायर द मॉलदीव्स. ओके, सो मॉलदीव्स भी था उनके पास. देन राजेंद्र के 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. लाइक उन्होंने एक टाइटल लिया था. क्या टाइटल था राजेंद्र चोला का? गंगई कोड़ा चोलापुरम. एंड वो टाइटल क्यों लिया था उन्होंने? गंगाज को हरा दिया था ना. गंगास को नहीं, मतलब वहां पे जो पाल डायनेस्टी थे ना, पाल डायनेस्टी में हमने पढ़ा था जो महिपाल थे. ठीक है, महिपाल को इन्होंने हराया था. तो वो जो गैंगेटिक वैली थी ना, वहां पे ये सब हुआ था. तो इस वजह से फिर उन्होंने गंगा पे खुद का कंक्वेस्ट बोल दिया था कि नाउ आई हैव द कंट्रोल ओवर द गंगा. So that is why he was impressed with the title of Gangai Koda Cholapuram. ओके. फिर इन्होंने वहीं पे अपना कैपिटल भी बना दिया था गंगई कोड़ा चोलापुरम में. ठीक है. एंड फिर इन्होंने एक चोल गंगम लेक भी बनवाई थी. ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चोल गंगम लेक थी, तो वो भी उन्होंने वहीं पे बनवाई थी.
एंड जो राजेंद्र थे ये लाइक ना थोड़े और ज्यादा फोकस्ड थे इन कंपैरिजन विद द राजराज, बिकॉज जो राजराज था उनका मोर फोकस किस पे था, कल्चर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में था। एंड राजेंद्र वॉज कंसंट्रेटेड एंड लाइक फोकस्ड मोर ऑन द एक्सपेडिशंस एंड एक्वायर करने के लिए उनका ज्यादा फोकस था। ओके, और इनका वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज मोर लेस सेम विद दैट अर्लियर चोलास वी हैव डिस्कस्ड yesterday as well. So let me give the basic terms, try answering. Shalbhog is related to Shalbhog. Shalabhog was the land given to the schools, and Agarhar was the land given to the Brahmins. And then all those terms, Nadu, Oi was there, Taniyoi were the big lands, okay, big villages, okay. Then the basic livelihood source of the Cholas was the revenue. So they used to earn revenue through their lands and like military camps, and then they used to earn their livelihood through that. And also जो उनके temples थे उससे भी उनको काफी ना charity and donations आती थी. So all these things helped to prosper and like construct more and more temples. आयम जो है वो रेवेन्यू को बोला जाता था, एंड गोल्ड कॉइन को काशू बोला जाता था. What was Kadmai? KADMAI. मैम कॉपर कॉइन को काशू कहा जाता था. नो, गोल्ड कॉइन को बोला जाता था. Yeah, gold coin was kashu. Okay. So Kadmai was the taxation system. Okay, जो कल देखा था कि जितने भी आए होते हैं लास्ट में वो सभी like ना they fall into the category of the taxes. What was Nadu? Group of villages. Repeat again. And Nadu is the group of villages. Yeah, so Nadu was the group of the villages, and Velalal क्या थे? Velalals? ये लैंडलॉर्ड्स या एग्रीकल्चरिस्ट. Yes, okay, so Velalal थे. एंड उझावर जो थे वो प्लोमैन थे, अरसर जो थे वो रूलर क्लास थी, अन्ना जो थे वो ब्राह्मण से हमने कल भी देखा था, राइट. तो उसके बाद नाना देशी क्या थे? नाना देशी एंड मनी ग्रामन, ठीक है, ये सभी ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे, मतलब वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको बोलते थे, ठीक है. एंड इनका जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था वो महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम. कावेरीपट्टनम का अनदर नेम क्या है? पुहार. या पुहार. ओके, सो पुहार को इस्टेब्लिश किसने किया था? करिकाला ने, ठीक है. करिकाला इज द रूलर ऑफ करिकाल वाज द रूलर ऑफ अर्लियर चोलास, ठीक है. एंड वी आर डिस्कसिंग इंपीरियल चोलास नाउ. ओके, तो जो चोलास थे उन्होंने इंपोर्ट क्या क्या किया था? ब्लैक चिली, देन मेडिसिन, ड्रग्स हो गई, या फिर जो कॉटन टेक्सटाइल होता था उसको वो सब एक्सपोर्ट करते थे. एंड जो इंडिगो था, इंडिगो ट्रैवनकोर जो है वहां से एक्सपोर्ट होता था. और जो मार्को पोलो है, मार्को पोलो ने मेंशन किया कि जो इनका इंडिगो होता था वो काफी हाई क्वालिटी एंड रिच क्वालिटी का होता था, ठीक है. देन इनका जो आर्ट एंड कल्चर है तो उसमें तो वही है कि जैसे जो पलवास ने स्टार्ट किया था ना, रॉक कट टेम्पल्स और द्रविडियन सिस्टम, मतलब रॉक कट तो गुप्ताज ने स्टार्ट किया था, बट रॉक कट के साथ रथ एंड ऑल वो सब है वो पलवास ने स्टार्ट किए थे. एंड पलवास के समय में ही भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, राइट. एंड देन इनके समय का वो चोल भी है जो चोला नटराज बोलते जिसे, ठीक है. तो चोल नटराज भी इन्हीं के टाइम का, एंड जो इनकी द्रविडियन सिस्टम था वो इस टाइम में अपने जेनिथ पे पहुंच गया था. और वो स्टार्ट कब हुआ था? पलवास के समय में जो द्रविडियन कल्चर था टेम्पल्स का वो स्टार्ट हुआ था, आर्किटेक्चर. बट अब जो है चोलास में वो आके अपने जेनिथ पे पहुंच गया,
ठीक है, एंड टेम्पल्स और भी हैं जैसे तिरुमलाई, चिदम्बरम एंड कुंभकर्णम। सो ये सभी जो टेम्पल्स है इसी टाइम के, बृहदेश्वर वी हैव डिस्कस, त्रिभुवनेश्वर, शिव मंदिर, all these temples like belongs to Chola age. Anything is left in Cholas? Anyone wants to add anything? Okay, then yes, say Nishi. Okay, then there is a bhakti movement as well in this. Okay, so I'm thinking कि वो हम लोग जब देख लेंगे जब नितिन सिंघानिया डिस्कस होगा, या अभी करना है? हाँ, वो थोड़ा डिटेल में ही कर लेंगे, तो नितिन सिंघानिया के साथ ही कर लेते हैं। है ना, एंड बाकी तो इसमें वही है, अब जो लिटरेचर था साउथ का, ठीक है, तो वो हमने वैसे काफी देख लिया, बट ठीक है हम वो सब ना बीच बीच में देख लेंगे, बिकॉज लाइक आज ऑलरेडी सेशन है ना बहुत लंबा और बहुत ज्यादा डेनेस्टीज थी, ठीक है, तो आई थिंक वी शुड कैरी ऑन टुमारो नाउ ना। हाँ, यस मैम। लिटरेचर